बहुत सारी स्टडीज हो रही है वीगन डाइट को डायरेक्टली एक नॉन वेजिटेरियन डाइट के साथ कंपेयर कर रही है। और नंबर वन चीज ऑफ एनिमल प्रोटीन इज दैट उसमें कोई फाइबर नहीं है साथ में। 2009 में तो मैंने जाके गूगल भी किया था क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट एज अ वीगन। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कुछ गूगल किया और 0 रिजल्ट आया हो? बट नंबर वन, एनिमल आर नॉट थिंग्स। We will be beginning with our first session today now, which is by Kuntal Joyshar, the first Indian vegan mountaineer who fuses his passion for mountaineering with a deep commitment to veganism and animal rights. With historic ascents of Mount Everest on a vegan diet, he showcases his physical prowess and ethical principles. Joyshar is not only an accomplished mountaineer, but also a computer science professional, nutrition and fitness coach, and a well-respected photographer. His climbing achievements span various mountain ranges worldwide, including Everest, Lhotse, Manaslu, Aconcagua, and Denali. He has earned recognition in both the fitness and photography spheres and has been featured in renowned publications and on the TEDx platform. Whatever he's sharing today, I'm sure all of us will be very inspired after his talk. Kuntal, I please invite you. So, I have divided my talk into two parts today. The first part is I'm going to show you like a 7 or an 8-minute video that will give you an idea of the journey that I took in the last 14 years. And then I'm going to, I think everyone can hear me, right? Yes. I'm generally anyway shouting. My wife is always telling me, why are you shouting when you're normally talking as well? And what I've done is that most of the video is entirely in English and all my slides are also in English. So I'm going to try and speak a little bit of mix of English and Hindi when I'm actually describing or talking about what I'm... so after the journey, I'm going to talk about protein especially and its connection to the world of athletics. I'm sure every one of you has gotten asked this question, where do you get your protein from as a vegan? So I want to definitely take care of that question. That is a centerpiece of my talk today. So, but I want to first start with this video that I would like you to see. Can you also turn off these 3 lights? Yeah. My name is Kuntal Joyshar. I am a mountaineer, I am a vegan, and I want to climb Mount Everest in the purest way. Being born in a vegetarian family, I always thought that I was a compassionate person. And then sometime in 2002, a friend started sort of pointing out to the choices I was making as a vegetarian. As soon as I started researching all this material, I quickly realized that even though I'm a vegetarian, I'm actually not a compassionate person. Because as a vegetarian, I was harming a lot of animals. And I realized that going vegan is the only way to be a compassionate person. In 2016, I became the first mountaineer to reach the top of Mount Everest on a vegan diet. It wasn't enough for me. This time around, I want to do it in the purest of ways. On Mount Everest, I used a suit of animal origin. There was no suit that could resist extreme temperatures created without killing animals. Majority of mountaineers use suits for which animals have been killed in the process of development. That wasn't okay for me. I felt guilty. That's why I started to search for someone who shared my values, someone who shared my dream, and that could help me realize it. Climb an 8,000 meter mountain in a 100% animal free suit. I tried and tried, but I had no answers. Then I found someone
someone who created a 100% animal-free climbing suit. In this suit, I climbed Mount Lhotse last year. It's the 4th highest peak of the world. Mountaineering, sure, is a passion of mine, but I cannot compromise on my ethics. I cannot compromise on my values. At the end of the day, veganism is not about just eating some food, but it's a philosophy of life. It's a value system, it's my ethics. And if I'm going to compromise with my ethics, then who am I? I'm going to be a mountaineer, but I'm going to do it as a vegan or not do it at all. Now I'm here in the Dolomites, getting ready to achieve the biggest dream of my life. I want to climb Mount Everest in a 100% animal-free suit. I'd always heard from a lot of mountaineers that paths are really rugged, steep, good technical climbing. But to me, mountains is a place where I just become one with myself. It may be Dolomites, it may be Mount Everest, or it may be the local mountains in Mumbai. It's just sheer joy to be in the mountains. For me, just the chance of being in the mountains is a big privilege, and that's what life is for me. I am ready to bring respect for nature, for animals on top of the world. We are now ready for our summit push. Today is May 19th. On May 19th, 2016, both of us summited Everest together. And today is when we leave to summit Everest on the north side. I hope that the mountain goddess, Chomolungma, allows us some time to spend on her top and lets us passage back safely in one piece, alive and with all our digits. So here we go. भगवान इस पे, हाँ इस पे थोड़ा ये रख के आगे आओ. Awesome भगवान. ठीक है भगवान, आगे 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 आगे.
जब भी 2009 में मैंने मेरा एवरेस्ट का ड्रीम फाइंड किया, one of the first things that everyone told me was that Kuntal, this is impossible. ये नहीं हो सकता है. You need to eat meat, you need to eat eggs, you need to eat dairy to go and climb Mount Everest, to build the fitness that you need to go and climb Mount Everest. But मेरे mind में बहुत clear था, and as I said in the documentary or the short movie as well, that if I'm going to climb Everest, I'm going to do it as a vegan or not do it at all. That was very, very clear in my mind. And as someone who also comes from an engineering background, I like reverse engineering things. तो जैसे ही कोई मुझे बोलता है ना कि प्रोटीन खाना है और प्रोटीन के लिए मीट जरूरी है या मीट खाना है, तो मेरे माइंड में हमेशा ऐसा आता है कि प्रोटीन खाना है. कोई अगर बोलता है ना कि दूध पीना है, तो मेरे माइंड में ऐसा आता है दूध नहीं पीना है, कैल्शियम चाहिए, थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए. अगर कोई बोल रहा है अंडा खाना है, तो मेरे माइंड में बहुत क्लियर है कि यार अंडा नहीं खाना है, यार प्रोटीन खाना है एट द एंड ऑफ द डे, या फिर कैल्शियम खाना है, या माइक्रो न्यूट्रिशन खाना है, या एसेंशियल फैट्स खाना है. सो लोग बोलते हैं कि मीट खाना जरूरी है, लोग बोलते हैं अंडा खाना जरूरी है, लोग बोलते हैं दूध पीना जरूरी है, लोग बोलते हैं बटर खाना, चीज खाना जरूरी है. बट मेरे माइंड में ये हमेशा ऐसा आता है कि प्रोटीन खाना जरूरी है, फैट्स खाना जरूरी है, माइक्रो न्यूट्रिशन खाना जरूरी है. And standing here, I can tell you that plants have all the nutrition that humans of all ages need. Okay. That doesn't mean कि आप वड़ा पाव और पाव भाजी का डाइट खा के आगे बढ़ो. That is not what I honestly mean. Those are all vegan things, and you can definitely eat them as part of a very balanced diet. But if you need to meet your nutrition needs, then you also have to be a little bit more planned and prepared compared to perhaps non-vegans. But there is no harm in that, right? हम animals को take care कर रहे हैं, और ये हमारा पूरे center piece है veganism का. So I want to speak about. Can we go to the next slide? Next slide again. Yeah. So ये जनरली काफी मैं लोगों को बताता हूँ कि the amount of time I spend talking about protein to people. So आप देख सकते हो. But anyways, next slide. So I'm going to keep the talk very simple, and then I'm going to keep some time for question and answers. So the number one question I get is कि कितना प्रोटीन दिन में जरूरी है. ठीक है, I'm not going to talk about carbs, about micronutrition, about essential fats, about holistic overall diet. I'm just going to focus specifically on protein and its connection to athletics, its connection to sports. If you're a recreational athlete, if you are an elite athlete, इन सब डायरेक्शंस में मैं आपको प्रोटीन से और वीगनिज्म के बारे में कनेक्शन में काइंड ऑफ शेयर करना चाहता हूँ. सो कितना प्रोटीन दिन में जरूरी है? I feel for someone who is just sedentary person या moderately active या just आप दिन में 5,000 10,000 स्टेप चलते हो, आप थोड़ा बहुत करते हो, कोई फॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करते हो, RDA आपको बोलेगा कि 0.8 ग्राम्स पर किलो ऑफ बॉडी वेट चाहिए. बट मेरे हिसाब से RDA बहुत ही आउटडेटेड है. RDA 1980s में सेट किया गया था, और उसके बाद साइंस काफी आगे बढ़ चुका है. एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि I am a very very science and an evidence based coach. तो मैं पिछले 30, 40, 50 सालों में जितना एविडेंस हमने जमा किया है थ्रू many studies that have been done, उन सब स्टडीज का एविडेंस को देखता हूं, और एनेक्डोटल एविडेंस को भी देखता हूं, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है. उन दोनों को मिला के जो माइंडसेट क्रिएट होता है, वो माइंडसेट से मैं बातें करना चाहता हूं यहाँ. सो For a person who is sedentary, moderately active, आपको 1 to 1.2 grams per kg of body weight जितना प्रोटीन चाहिए दिन में. तो let's say for example आप 75 kilos के हो, तो आपको दिन में एटलीस्ट 75 से 90 ग्राम्स प्रोटीन खाना मेरे हिसाब से जरूरी है, अगर आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीनी है, way into your 80s and 90s, and you want to keep your muscle mass also intact. सिर्फ प्रोटीन खाने से नहीं होने वाला है, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा. बट दिस इज व्हाट आई फील इज द RDA और शुड बी द RDA टुडे. इट इज नॉट 0.8 ग्राम्स एज लोग बोलते रहेंगे पूरे टाइम.
सेकंड है, अगर आप एंड्योरेंस एथलीट हो, एंड्योरेंस एथलीट मतलब अगर आप मैराथन्स भाग रहे हो या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो या आप माउंटेनियरिंग कर रहे हो या ये सब चीजें कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 1.4 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट जितना प्रोटीन जरूरी है। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग एथलीट हो, मतलब अगर आप प्रॉपर जिम में जाके अच्छे से ट्रेनिंग करते हो और आपको आपके मसल्स भी बनाने हैं ओवर अ लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम, तो आपको 1.6 से 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट जितना प्रोटीन चाहिए। अभी मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूंगा, तो मैं पहाड़ भी चढ़ता हूं और मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता हूं। जनरली मैं अराउंड 1.5 से 1.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाता हूं। तो अगर आप मेरा देखोगे तो मेरा वजन अभी अराउंड 82 है, 83 है, तो मैं एकदम ही सिंपल रखूंगा 80 इंटू 1.5, तो मुझे करीबन दिन में 120 से थोड़ा ज्यादा प्रोटीन चाहिए। अभी ये ऐसा नंबर नहीं है कि आपने 125 ग्राम, अगर समझो आपने डिसाइड किया कि आप 125 ग्राम खाने वाले हो दिन में और आपने 126 ग्राम खाया या आपने 124 ग्राम खाया, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है, राइट? थोड़ा ज्यादा खाया, थोड़ा कम खाया, किसी दिन और भी कम खाया, किसी दिन और भी ज्यादा खाया, ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम ये सब एवरेज आउट हो जाएगा। बट मेरे in my case I eat easily around 120 to 130 grams of protein on a regular basis। और काफी टाइम मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि इतना प्रोटीन आपको वीगन डाइट से कैसे मिलता है? मिल जाएगा, पर आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग करने की जरूरत है और आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करके अपना डाइट अच्छे से सेट करने की जरूरत है। मैं थोड़ा मेरा न्यूट्रिशन माइंडसेट पे जाऊंगा पहले, बिफोर स्विचिंग ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड विच विल टेल यू कि मैं दिन में क्या खाता हूं ऑन अ रेगुलर डे। मेरे हिसाब से वेल बैलेंस्ड वीगन डाइट इज अ की। और वेल बैलेंस का मतलब क्या है? आई थिंक वेल बैलेंस का मतलब है कि आपके डाइट में जितना भी शाकाहारी फूड है, एवरीथिंग फ्रॉम वेजिटेबल्स टू फ्रूट्स टू होल ग्रेन्स to all the dals, to all the beans which is rajma, chole, सब कुछ, to even all the other products available, it could be tofu, tempeh, it could be seitan, आजकल तो मार्केट में मॉक मीट्स भी मिलते हैं, वो हो गया। इसको छोड़ के असेंशियल फैट्स जिसमें आपको एवोकाडो हो गया या फिर सीड्स और नट्स हो गया, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, सारे कुछ हो गए, सेसमी सीड, तल के सीड, सब कुछ। एक ओवरऑल होलसम डाइट आपको फॉलो करना है, ना कि कोई एक ही चीज पिक करके उसी एक चीज पे आपको लगे रहना है और वही आपको खाना है। मेरे हिसाब से सब कुछ आपको खाना है और इसमें से आपको इनफ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, इनफ डाइवर्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। अभी अगर मैं मसल बिल्डिंग की बात करूं, काफी टाइम मुझे इंटरनेट पे लोग बोलते हैं कि आप वीगन बन के मसल नहीं क्रिएट कर सकते हो। आप अगर पिछले 5 या 7 सालों की स्टडीज देखोगे, 2015 या 2016 के करीबन वीगनिज्म बहुत ही वायरल हो गया इंटरनेट पे, और उसके बाद वीगनिज्म एज अ मूवमेंट भी बहुत ही आगे बढ़ रही है। कैसा हो रहा है ना कि बहुत सारी स्टडीज हो रही है, वीगन डाइट को डायरेक्टली एक नॉन वेजिटेरियन डाइट के साथ कंपेयर कर रही है, और ये स्टडीज में वो कंपैरिजन करते हैं कि क्या वीगन्स उतना ही मसल बना सकते हैं जितना नॉन वेजिटेरियंस बना सकते हैं। एक स्पेसिफिक पॉइंट में यहां बोलना चाहूंगा कि इन सब स्टडीज में वीगन्स और नॉन वेजिटेरियंस सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन खा रहे हैं। तो अगर नॉन वेजिटेरियंस दिन में 120 ग्राम खा रहे हैं, तो वीगन्स भी दिन में 120 ग्राम खा रहे हैं। और फिर वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं 12 या 14 हफ्तों के लिए। उसके बाद उनकी मसल की बायोप्सी की जाती है और देखा जाता है कि मसल की साइज कितनी बड़ी है। स्ट्रेंथ भी देखा जाता है कि अगर समझो मैं पहले 100 केजी का डेडलिफ्ट कर रहा था, तो मेरा स्ट्रेंथ कितना इंक्रीज हुआ है 12 हफ्तों के ट्रेनिंग के बाद व्हाइल फॉलोइंग अ वीगन डाइट। तो 5 या 7 सालों में जितनी भी स्टडीज हुई है अभी तक, उन्होंने क्लियरली दिखाया है कि एज लॉन्ग एज वीगन्स ईट इनफ प्रोटीन, they will build the same amount of muscle mass as a non-vegetarian and they will build the same amount of strength as a non-vegetarian। तो अगर आप जो भी सब यहाँ बैठे हो और आपको ऐसा है कि मुझे जिम जाना है, मुझे ट्रेन करना है, या आपके अगर सन्स या डॉटर्स है जिनको जिम जाना है, ट्रेन करना है, और अगर उनको माइंड में ऐसा कुछ भी थॉट है कि मैं मसल बिल्ड नहीं कर सकता हूँ,
ये एकदम ही गलत बात है। आप 100% वीगन डाइट पे मसल बिल्ड कर सकते हो। आपको जस्ट इंश्योर करना है कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा हो, आप कंसिस्टेंटली ट्रेन कर रहे हो और आप कंसिस्टेंटली अच्छा खाना खा रहे हो और एटलीस्ट थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हो आप प्रोटीन पे और इनफ प्रोटीन खा रहे हो। सो ये मुझे बात बतानी थी। एज मैंने बोला कि मैं दिन में 1.5 ग्राम्स प्रोटीन खाता हूँ। बाकी मैं काफी सारे वेजिटेबल्स खाता हूँ। ऑलमोस्ट मैं दिन में आधा किलो से 1 किलो वेजिटेबल्स खा जाता हूँ। एटलीस्ट 3 से 4 पीस फ्रूट के भी खाता हूँ। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नट्स एंड सीड्स भी खाता हूँ। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन ही खाया, बाकी सब भी खा रहा हूँ। एक पूरा बैलेंस डाइट है जिसमें रिमेंबर देयर आर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द वर्ल्ड, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। तो तीनों खाने हैं, सिर्फ 2 नहीं खाने। अगर मैं इंडियन डाइट देखता हूं ना, तो इंडियन डाइट में लोग या तो सिर्फ कार्ब्स खा रहे या तो लोग सिर्फ फैट्स खा रहे। प्रोटीन को तो जैसे भूल ही गए, जैसे है ही नहीं प्रोटीन। सो प्लीज आप तीनों पे अच्छे से फोकस करो। एक ही चीज पे, 2 चीज पे मत फोकस करो, तीनों पे फोकस करो और इनफ वेजिटेबल्स और फ्रूट खाओ, इनफ नट्स और सीड्स खाओ, जिससे आपको फैट्स और माइक्रो न्यूट्रिशन भी अच्छे से मिले और आपको इनफ फाइबर भी मिले। तो एक पूरा होलसम डाइट खाने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से ये काफी सस्टेनेबल भी है, क्योंकि हम सब लोग सोशल क्रीचर्स भी है। तो हम सब लोग दूसरे लोगों के साथ बाहर भी जाते हैं, उनके साथ भी खाना खाते, उनके साथ रेस्टोरेंट में जाते। तो ऐसा नहीं कि नहीं यार मैं ये नहीं खाता। आपको वीगन खाना आजकल हर रेस्टोरेंट में मिल जाता है। आप इजीली जाके वीगन खाना खा सकते हो और एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉलो करो जो आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सको। सो एक मेन चीज मुझे सबको बतानी थी कि अगर आप अपना B12 और D3 का प्लीज टेस्ट करा लो, और अगर आपका विटामिन B12 और D3 का लेवल लो है तो आप इंश्योर करो कि आप उसको हाई लेके आते हो और या बराबर रेफरेंस रेंज के बीच में लेके आते हो। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं न्यूट्रिशन और फिटनेस कोच भी हूं, तो मेरे पास काफी क्लाइंट्स आते हैं और काफी लोगों की मैंने देखी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही बुरी हो जाती है। और जब भी मैं उनका विटामिन B12 और D3 टेस्ट कराता हूं तो किनका विटामिन D3 तो ऑलमोस्ट इतना कम होता है कि नॉन एग्जिस्टेंट होता है। लाइक विटामिन D3 का रेंज अच्छा रेंज है 30 से लेके 70 के बीच में। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले मेरे क्लाइंट्स थे जिनका विटामिन D सिर्फ 2 पॉइंट्स था, 2 पॉइंट्स। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बुरी हो गई थी ना कि वो ऑफिस में जाते थे और सो जाते थे, घर आते थे सो जाते थे। They had lost motivation to even live. They didn't have any motivation at all. The moment I got their vitamin B12 and vitamin D3 levels up, सब कुछ चेंज हो गया। Their motivation came back and they were normal. So if I were you, विटामिन B12 और D3 की प्लीज टेस्ट कराओ। और अगर कम है तो आजकल वीगन सप्लीमेंट मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, वो लेके आप प्लीज अपनी लेवल्स को बराबर कर लो। ये बताना था। अब नेक्स्ट स्लाइड, आई विल गो इनटू अ लिटिल बिट अबाउट अ डे इन माय लाइफ, कि मैं खाना क्या खाता हूँ। सो आई स्टार्ट विद अ वेरी बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट, बिकॉज आई फील कि ब्रेकफास्ट मेरे लिए थोड़ा मेरे कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मेरा वर्कआउट करता हूँ। तो आई एंश्योर दैट आई हैव अ रीजनेबल ब्रेकफास्ट जिसमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन मुझे मिल जाए, और 2, 2.5, 3 घंटे के बाद मैं अपना वर्कआउट करता हूँ। तो आई शुड हैव इनफ न्यूट्रिशन इन माय ब्लड कि मैं अच्छे से मेरा वर्कआउट कर सकूं। तो मेरा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट अभी 5 या 6 मे बी इवन उससे भी ज्यादा साल हो गए कि मैंने सेम ही ब्रेकफास्ट खाया है हर दिन। एक लाइक आई एम नॉट जोकिंग, हर दिन मैंने सेम ब्रेकफास्ट खाया। लिटरली आज में भी जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तभी मैं कुछ डिफरेंट खाता हूँ, वरना इट्स द सेम ब्रेकफास्ट एवरी डे। 5 मिनट लगता है। मेरे घर में मेरी वाइफ और मेरी बेटी भी सेम ब्रेकफास्ट खाते हैं, तो मैं ही उनके लिए खाना बनाता हूँ। एटलीस्ट ब्रेकफास्ट मेरा जिम्मेदारी है। सो माय ब्रेकफास्ट इज कि मैं थोड़ा बहुत रोल्ड ओट्स को लेके मैं पानी में डाल देता हूँ, और उसके अंदर मैं मेरे सारे नट्स डाल देता हूँ, उसके अंदर मैं मेरा प्रोटीन पाउडर डाल देता हूँ, और ये सब कुछ मैं मिक्स करके फ्रिज के अंदर डाल देता हूँ रात को। फिर जैसे मैं सुबह को उठता हूँ और मुझे भूख लगती है, जनरली मैं सुबह को अराउंड 8:39 को उठता हूँ, और बाय 11 o'clock मैं मेरी ब्रेकफास्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी जनरली भूख नहीं लगी रहती है सुबह को। सो बाय 11 आई हैव माय ब्रेकफास्ट, और मैं ये सब कुछ लेता हूँ, और मैं इसको, मेरा फेवरेट फ्रूट है, मैंगो हो गया या केला हो गया या चीकू हो गया या कुछ भी हो गया, मैं उसके साथ मिक्स करता हूँ, ब्लेंड करता हूँ और पी जाता हूँ।
अभी मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा। आप काफी जगह पे इंटरनेट भरा हुआ है इन सब चीजों से, नट्स को फ्रूट के साथ मिक्स कर मत करो, वेजिटेबल को इसके साथ मिक्स मत करो, इसको उसके साथ मिक्स मत करो। ये सब एडवाइस को कचरे के डब्बे में फेंक दो आप। आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लाइफ में बहुत स्ट्रेस है सबको, ज्यादा स्ट्रेस मत लो अपने आप पे, ठीक है। नट्स जब भी खाना है खाओ, फ्रूट जब भी खाना है खाओ, वेजिटेबल जब भी खाना है खाओ, जो जब भी खाना है खाओ। अरे मेरे भाई लोग पहले खाओ, ठीक है। तुम लाइफ कॉम्प्लेक्स मत बनाओ अपनी कि मैं ये पहले खाओ। लेकिन एक किसी का मैंने न्यूट्रिशन प्लान देखा था, सुबह 6 बजे उठ के पहले 2 बादाम खाओ, 20 मिनट के बाद 2 काजू खाओ, 20 मिनट के बाद 2 रेजिन खाओ। अरे मैंने बोला ये करूंगा मैं पागल हो जाऊंगा पूरा। थोड़े टाइम के बाद तुम मुझे मेंटल हॉस्पिटल में मिलने आओगे। ये सब मत करो आप प्लीज। ये सिंपल एडवाइस दे रहा हूं मैं आपको। कॉम्प्लेक्स मत बनाओ अपनी लाइफ को सिंपल करने की ट्राई करो जितना हो सकता है अपने साइड से, ठीक है। तो मैं लंच में क्या करता हूँ ना, जो मेरे घर में जो भी बना हुआ रहता है ना सब्जी, वो मैं सब्जी को ले लेता हूँ। अगर उन्होंने दाल बनाया तो मैं वो दाल भी ले लेता हूँ। साइड में मैं खुद से बहुत ही बड़ा सैलेड चॉप करता हूँ और वो लेता हूँ। और फिर उसके साथ में मैं या तो टोफू या तो टेम्पे या तो फिर अगर मुझे टाइम मिला और मैंने घर में सेटान बनाया है। कितने लोगों को पता है यहाँ सेटान क्या है? बहुत ही थोड़े लोगों को पता है। तो सेटान है ना, व्हीट ग्लूटेन से बनता है और ये एकदम मॉक मीट जैसा ही दिखता है और एकदम ही प्रोटीन रिच और एकदम ही पावर पैक्ड है। तो अगर मैंने कभी टाइम मिला और मैंने ये घर में बनाया तो इंस्टेड ऑफ टोफू या टेम्पे मैं सेटान यूज करता हूँ अपने डाइट में। सो जनरली ये मेरा लंच होता है जहाँ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स कुक्ड और रॉ दोनों रहते हैं। अगर रोटी बनी है तो घर में कभी कभी एक आध रोटी या थेपला बना है तो कभी थेपला भी ले लिया, पराठा बना है तो पराठा ले लिया, जो भी मन हुआ। और दाल अगर है तो दाल ले लिया, राजमा है तो राजमा ले लिया, छोले की सब्जी बनाई है तो छोले ले लिया। बेसिकली जो घर में बना है वो थोड़ा बहुत ले लिया, मेरा थोड़ा बहुत ले लिया और एक अच्छा रीजनेबल अमाउंट ऑफ खाना खा लिया जो बैलेंस्ड है अगेन। सो मेरा फोकस हर मील में ट्राई रहता है कि बैलेंस रहे, इनफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है सिंपल कॉम्प्लेक्स, इनफ फाइबर मिल रहा है, इनफ प्रोटीन मिल रहा है और अगर असेंशियल फैट्स हो तो भी ग्रेट। तो ये सब कुछ होना चाहिए मेरे प्लेट के अंदर। और फिर शाम को अगर डिनर के पहले कभी भी भूख लगी तो दैट इज अगेन माय वे ऑफ कि अगर मुझे और फ्रूट चाहिए तो मैं फ्रूट खाता हूँ और मोस्ट लाइकली मैं फ्रूट को एक प्रोटीन शेक के साथ भी कंबाइन करता हूँ। तो प्रोटीन शेक इज स्ट्रेट अप, मैंने प्रोटीन पाउडर लिया, पानी में डाला, प्रोटीन पाउडर लिया, सोया मिल्क में डाला, शेक किया और पी लिया, साथ में फ्रूट खा लिया और अगर और भूख लगी तो नट्स भी खा लूंगा। सो टिपिकली ये मेरा स्नैक होता है अगर भूख लगी तो, वरना मैं मोस्ट ऑफ द टाइम डिनर पे ही जाता हूँ। और डिनर, अभी मैं गुजराती हूँ तो मेरे घर में ना रोज शाम को आइटम बनता है तो क्योंकि काफी गुजराती घर में आइटम बनता है रोज शाम को। तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि जो भी घर में बना है स्पेसिफिकली, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वड़ा पाव बना है या पाव भाजी बना है या फिर अगर पास्ता बना है तो मैं ट्राई करूंगा कि उसी चीज का मैं थोड़ा बेटर वर्जन बनाने की ट्राई करूँ। लाइक अगर उन्होंने पास्ता बनाया तो मैं बोलूंगा बॉईल करके मेरे लिए पास्ता रख दो, क्योंकि ये ना हमारा जो डोमेस्टिक हेल्प है ना, जो कुक करने में हेल्प करता है, वो इतना ऑयल डालता है ना कि मैं पूरे गांव को खिला सकता हूँ उतने ऑयल में। सो आई डोंट लाइक यूजिंग दैट लेवल ऑफ ऑयल इन माय फूड, एटलीस्ट इन माय रेगुलर डे टू डे फूड। तो फिर मैं उनके पास्ता सेपरेटली करके मैं खुद का बना लेता हूँ पास्ता। या अगर उन्होंने वड़ा पाव बनाया तो मैं फ्राइड वड़ा पाव नहीं खाऊंगा, मैं क्या करूंगा कि जो भी पोटैटो का जो मावा बनाया है वो लेके मैं फिर अपना खुद का कुछ बना लूंगा। सो समथिंग वेरी सिमिलर, जहां मुझे इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा बैठ के आधा घंटा स्पेंड करके एक अच्छा मील बनाऊं। सो कभी कभी जो घर में बनाए वही अपने वे में मैं खा लेता हूं। और जनरली अगर आपने देखा, मैंने सब जगह लिखा है कि कितना प्रोटीन मुझे अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है। मुझे इजीली 120 से 130 ग्राम प्रोटीन दिन में मिल जाता है, बट डेफिनेटली मुझे थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है इसके लिए, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। और काफी लोग बोलते हैं कि फिर प्रोटीन पाउडर यूज कर रहे हो। लेट मी टेल यू कि प्रोटीन पाउडर भी खाना ही है एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप वीगन प्रोटीन पाउडर देखोगे तो ये दाल और राइस को मिक्स करके बनाया जाता है। जो दाल होती है ना, येलो कलर की दाल या येलो जो अपना जो रगड़े का जो चना होता है ना, तो वो रगड़े के चने का जो प्रोटीन का पार्ट है ना, वो आइसोलेट किया जाता है और फिर उसको पाउडर बनाया जाता है।
तो यही जो आप खा रहे हो वो थोड़ा अलग फॉर्म में प्रोटीन पाउडर है। तो लोग बहुत डीमोनाइज करते हैं प्रोटीन पाउडर को ऑनलाइन के, अरे प्रोटीन पाउडर खाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका सारा कैलोरीज प्रोटीन पाउडर में से आ रहा है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पर अगर आप एक बैलेंस डाइट के अंदर जहां आप इनफ फाइबर, इनफ फ्रूट, इनफ माइक्रो न्यूट्रिशन खा रहे हो, तो 1 या 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। उससे ज्यादा भी खा लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला है आपको, ठीक है। सो ये थोड़ा एक माइंडसेट रखना है आपको कि हर चीज को डीमोनाइज नहीं करना है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। कभी कभी मुझे लगता है कि इंटरनेट पे आप जाके पढ़ोगे ना तो इतना सब कुछ बुरा है ना कि हवा और पानी भी नहीं पी पाएंगे हम लोग। मतलब ऐसी ऐसी जिंदगी हो जाएगी। आजकल तो हवा और पानी भी इतना बुरा हो गया ना कि हम वो भी नहीं पी पाएंगे। सो सब देखो, सब पढ़ो इंटरनेट पे, बट एक ओवरऑल बैलेंस डाइट रखना बहुत जरूरी है। सो दिस इज हाउ आई गेट माई प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स मेट। एंड ऑनेस्टली थोड़ा बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, बट अभी बहुत इजी हो गया है, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि एनिमल्स के प्रोटीन के बारे में क्या, लाइक लोग मुझे बोलेंगे कि कुंतल तुम एक साइंस एंड एविडेंस बेस्ड कोच हो, फिर आप एनिमल प्रोटीन के बारे में क्या बोलते हो। अभी अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल, ऑनेस्टली millions of athletes who have created their fitness on a animal protein diet. तो मैं यहां खड़े रह के मैं कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला कि प्लांट प्रोटीन एनिमल प्रोटीन से सुपीरियर है, बेटर है, ये है, वो है। मैं सिर्फ मेरे थोड़े थॉट शेयर करने वाला हूं एनिमल प्रोटीन पे। I personally feel that animals are not a food group. They are individual characters. They are sentient beings. They are emotional animals. वो हम जैसे हैं, उनकी भी फैमिलीज है। They feel love, they feel pain, they feel sadness. Protein is also highly inefficient. अभी आप सोचो, आप एक बकरा उगाने वाले हो 10 साल तक, फिर आप उसको काटोगे और उसमें से आपको कुछ हार्डली कुछ मीट मिलने वाला है जो आप प्रोटीन की तरह यूज करोगे। इतना सारा खाना खिलाया उसको पूरी लाइफ भर, इतना सारा पानी पिया, इतना सारा सब कुछ रिसोर्सेज यूज किया, और एट द एंड ऑफ द डे आपको हार्डली कोई उसमें से प्रोटीन मिला एक्चुअली। चलो मैं पहला पॉइंट अगर कंसिडरेशन से बाहर भी निकाल दूं तो एनिमल प्रोटीन इज अ हाईली इनएफिशिएंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। बहुत ही ज्यादा लैंड लॉस है, वाटर लॉस है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, बहुत इश्यूज है इसके साथ। अनदर थिंग, अगर मैं हेल्थ एंगल से देखा जाए तो काफी सारे एनिमल मीट्स हैव अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट इन देम। नाउ excess intake of saturated fat has been clearly shown to raise LDL cholesterol, जो bad cholesterol बोला जाता है जिसको, and LDL cholesterol is directly connected to cardiovascular risk or you getting a stroke at some point later in your life. So another test that I would like everyone in this room to do is your lipid profile. और अगर आपका LDL बहुत ज्यादा हाई है, प्लीज लो करो उसको। और उसको आप लो कैसे करोगे? आप उसको लो करोगे बाय ईटिंग अ लॉट ऑफ फाइबर, आप उसको लो करोगे बाय मूविंग अराउंड अ लॉट, बाय एक्सरसाइजिंग। और अगर आपको कोई जेनेटिक इशू है या कोई और इशू है जिसकी वजह से आपका एलडीएल कम नहीं हो रहा है, तो प्लीज डॉक्टर को जाके मिलो और फिगर आउट करो कि आप आपका एलडीएल कैसे लो कर सकते हो, क्योंकि ये आप बहुत ज्यादा रिस्क छोड़ रहे हो टेबल पे। आप प्लीज मत छोड़ो ये रिस्क। काफी सारे एनिमल्स को हमको जैसे डिसीज होती है, हमको जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, हमको जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और हमें जैसे एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती है, वैसे एनिमल्स जिसको हम ग्रो कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती है। और वही एनिमल्स अब फूड सिस्टम में है और सब लोग वो एनिमल्स को खा रहे हैं, तो वो भी वो एंटीबायोटिक्स अननेसेसरीली खा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी बग रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ओवर द कोर्स ऑफ मेनी इयर्स। तो ये भी एक इशू है। और नंबर वन चीज ऑफ एनिमल प्रोटीन इज दैट उसमें कोई फाइबर नहीं है साथ में। सो आप प्रोटीन तो दुनिया भर का खा रहे हो बट उसमें कोई भी फाइबर नहीं है। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। सो ये 6 पॉइंट है।
जो मेरे हिसाब से go significantly against animal protein. But number one, animal are not food groups. Animals are sentient and emotional beings with individual characters. तो please ये ध्यान में रखो. Just एक last चीज बोलूंगा. काफी लोगों ने मुझे ना बोला जब भी मुझे एवरेस्ट चढ़ना था कि कुंतल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है. आज तक किसी वीगन ने नहीं किया है. The number one thing that I did was I didn't let anyone tell me that ये नहीं हो सकता है. ठीक है? So if any one of you have any big dreams in life that you want to achieve on your vegan lifestyle, पहले तो लोगों को सुनना बंद कर दो, क्योंकि लोग आपको बोलने वाले हैं ये नहीं होने वाला है. I can guarantee that too कि सब लोग बोलेंगे नहीं होगा. अगर 2009 में तो मैंने जाके गूगल भी किया था क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट एज अ वीगन. कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कुछ गूगल किया और 0 रिजल्ट्स आया हो? नहीं होता है ना. ऐसा मेरे साथ हो गया 2009 में. गूगल किया, कोई रिजल्ट्स नहीं थे गूगल के पास. सो यू कैन इमेजिन दैट पीपल विल ऑलवेज से नो. नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है. वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज दैट डोंट लेट anyone tell you that it can't be done on a vegan lifestyle. 2009 में मैं 110 किलोस का obese unhealthy सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो वीगन भी था तभी भी. अगर मैं तो गुजराती हूं, मतलब मेरा तो फैमिली ऐसा है ना कि अगर एक फ्लोर भी चढ़ना है तो लिफ्ट लेगा. सो मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूं और बॉम्बे में रहता हूं. प्लस 40 डिग्री सेल्सियस तो पूरे साल भर वेदर रहता है हमारा. ठीक है? अगर मेरे जैसा बंदा can turn around his life and go and climb Everest not just once or twice, I can tell with absolute confidence that इस रूम में बैठा हर बंदा अपना पर्सनल एवरेस्ट ऑन अ वीगन लाइफस्टाइल क्लाइंब कर सकता है. 100%. As मैंने बोला, no animals need to suffer or die for our dreams to come true. No animals need to suffer or die for our existence. That is how I will end my talk. Thank you so much. Thank you.